السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں اقرا شہزاد اور میں ہوں سمینا پاشا۔ سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور ہیں آپ ہی خیر البشر، نور البشر، فخر کمال انبیاء، صلی علی رسول مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ارض و سما میں جشن، زمین و آسمان درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ ملک بھر میں درود و سلام کی محافل، کراچی، لاہور سمیت کئی شہروں میں جلوس، ہر جگہ عاشقان رسول کی عقیدت کا اپنا ہی انداز۔ ملتان میں 50 من حلوے کی دیگ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں کا جوش بھی قابل دید، رنگ برنگ لباس اور امامے پہن کر جلوسوں میں شرکت، درود و سلام کا ہدیہ اور نعتیں پیش کرتے رہے۔ حضور کی آمد۔ چھوٹے میاں بے صبر، بڑے بے صبر، چھوٹے میاں بے صبر۔ پڑھنے کے لیے بے صبر بچوں کے لیے عام مکھن نہیں، صرف بلو بینڈ۔ اس میں ہے ضروری وٹامنز اور گڈ فیٹس جو پڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ چھوٹے بڑے پراٹھوں پہ بلو بینڈ روزانہ، روز بڑھتے جانا۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، میں ہوں رحمان اظہر۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن، بلیٹن میں سب سے پہلے اسی بارے میں بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، آقائے دو جہاں، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ ان جلوسوں کی تفصیلات اس رپورٹ پہ ہیں۔ در کی فضاؤں کو سلام۔ ہر طرف سبز امامے، نعلین مبارک کی شبیہ والے پرچم لہراتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ شہر قائد میں 290 چھوٹے جلوس نکالے گئے جو میمن مسجد، بولجن مارکیٹ سے نکلنے والے مرکزی جلوس میں نشتر پارک پر شامل ہو گئے۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دادا دربار پر ختم ہوا۔ لاہور کے دیگر علاقوں سے بھی درجنوں جلوس نکالے گئے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اسلام آباد میں بھی عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس سیکٹر G7 سے نکالا گیا۔ راولپنڈی میں عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس جامع مسجد قدیمی سے شروع ہوا جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد قدیمی پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ فیصلہ آباد میں درجنوں جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی جلوس جھنگ بازار رضوی مسجد سے برآمد ہوا جس نے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کا چکر لگایا۔ ملتان میں مختلف علاقوں سے 71 جلوس نکالے گئے۔ دولت گیٹ سے برآمد ہونے والے مرکزی جلوس کی قیادت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم جاوید ہاشمی نے کی۔ جلوس حسین آگاہی چوک پر پہنچ کر ختم ہوا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس مسجد میاں اسماعیل سے برآمد ہو کر مشن چوک سے ہوتا ہوا باچا خان چوک پر ختم ہوا۔ خطرات کی ٹھنڈی
दिन भर अकीदत के रंग छाए रहे, हर किसी ने अपने अपने अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया। जी हाँ, मुल्क के बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद और लाखों सलाम। दुरूद और सलाम की सदाएं सरों पर, सब्ज पगड़ियां सीनों पर, नालैने मुबारक के नक्श। बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में रहने वाले आशिकाने रसूल भी दीवानावार नातें पढ़ते सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रहे हैं। गुजरांवाला में जलसे जुलूसों, महफिल नात और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमात हुए। मरकजी जुलूस शेरांवाला बाग से निकाला गया। सखर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां निकाली गईं। घंटा घर चौक से मरकजी रैली निकाली गई। शुरका दुरूद और सलाम पेश करते रहे। हाफिजाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स भी तैयार किए गए। गुजरात में भी दुरूद और सलाम, आमदे मुस्तफा मरहबा की सदाएं फिजा में बुलंद हो रही हैं। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में ईद मिलाद का बड़ा जुलूस अपर अड्डा से निकाला गया। छोटे बच्चे सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे। जफराबाद के इलाकों डेरा लयार, उस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर समेत छोटे बड़े देहातों में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। साहिवाल, उकाड़ा, पीर महल और ननकाना साहब में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। रिनाला खुर्द और शेखुपुरा में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर जुलूस निकाले गए। बुरेवाला में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सांगला हिल, पिंडी भटिया में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। पीर महल में भी हर तरफ सब्ज झंडों की बहार नजर आई। अंदरूने सिंध समेत खोटकी में भी आशिकाने रसूल ने जुलूस निकाले। जुलूस के शुरका नातिया कलाम और दुरूद और सलाम पेश करते रहे। लाखों दुरूद और लाखों सलाम। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अभी रिपोर्ट भी आपने देखी। मजीद इसी बारे में बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में दुनिया न्यूज के नुमाइंदे किफायत अली शाह, लाहौर से मुजाहिद शेख, मुल्तान से जानशेर खान और पेशावर में मौजूद हैं सफीरुल्लाह। आप तमाम हजरात को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ा सादत वाला बाबरकत मौका है। किफायत, पहले आपके जानिब आता हूँ। कराची का बहुत चर्चा रहा, वहाँ रिकॉर्ड भी बने। आज दिन भर कराची में क्या होता रहा? दिन भर रहमान जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस जो है वो अहमद जिना रोड पर निकाला गया और उसके बाद जैसी इख्तिताम हुआ है तो रात जैसी हुई है तो पूरा शहर जो है वो जगमग कर रहा है। रमजान, ये रबीउल अव्वल का महीना, मुबारक महीना जब भी शुरू होता है तो ख़ास तौर पर चरागां किया जाता है। मुख्तलिफ इलाका मकीनों की जानिब से शहरी खास इत्माम करते हैं। मिलजुल कर जो है वो अपनी गलियों को सजाते हैं। सरकारी और निजी इमारतों को जो है वो सजाया गया है बरकी कुमों से, जिसकी वजह से इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहा है। इसके अलावा जो है वो जो लोग जो हैं वो नात ख्वानी का भी इत्माम करते हैं। आज जुलूस के दौरान भी जो है वो लोग नात पढ़ते रहे और जुलूस जैसी इख्तिताम हुआ और रात हुई तो मुख्तलिफ इमारतें जो हैं वो बहुत ही दिलकश मंजर पेश कर रही थी। ये मंजर जो है वो रबीउल अव्वल को शुरू होते के साथ ही शहर में जो है वो खास तौर पर नजर आता है। लेकिन खास तौर पर जो है ज्यादा तमाम लाइटिंग का जो होता है वो 12 रबीउल की रात से ही ये तमाम सूरत होती है और अभी भी यही मंजर पेश आ रहा है कि वहाँ पर जो है अभी भी रोशनियों का शहर कराची मजीद जगमगा रहा है क्योंकि सरकार की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। मुजाहिद, आपकी जानिब आता हूँ। लाहौर में कहाँ महफिल का इनकाद किया गया? हाजी रहमान, लाहौर में तो अभी तक जो है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरूज पर है। लोग जश्न मना रहे हैं और लाहौर शहर का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा मुकाम नहीं था
जहां पर रैलियां ना निकाली गई हो और जश्न का समा ना हो। आप ये देख सकते हैं कि दीवारों पर और लोगों की जुबानों पर आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा ये तहरीर किया गया है। और ये देख सकते हैं आप कि ये अंदरून शहर का एक बाजार है जिसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो है सजाया गया है। लोगों की बड़ी तादाद बिल्कुल नए कपड़े पहनकर, और खासकर बच्चे जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं बड़े खूबसूरत कपड़े पहनकर और तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं और ये जश्न का समा मना रहे हैं। आज जो लाहौर शहर है इसकी फिजाओं में जो है दुरूद सलाम जो है वो बड़ी बावाज़े बुलंद पड़ा जाता रहा है और सारा दिन ये सिलसिला जारी रहा और इस वक्त भी ये सिलसिला अपने अरूज पर है। और लोग अब बच्चों को लेकर जो है ये लाइटिंग और ये जो पहाड़ियां बनी हैं, ये जो तैयारियां हुई हैं, उनसे जो है लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। जी लोग भी बाहर निकले हैं। अब आपको लिए चलते हैं मदीनातुल औलिया मुल्तान, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जानशेर और उनसे जानते हैं। जानशेर, मुल्तान में आज दिन भर क्या होता रहा, किस तरह से सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया? जी बिल्कुल रहमान, मदीनातुल औलिया मुल्तान शहर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत पूरे जोशो जज्बे और मुकम्मल एहतराम के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। पूरा मुल्तान शहर जो है इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंगो नूर की बरसात है यहाँ पर जो उमड़ आई है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। कोई गली, कोई कूचा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसको सजाया ना गया हो। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारात पर जो है बरकती कुमकुमे लगाए गए हैं। हजरत शाह रुकने आलम बहाउद्दीन ज़करिया और तमाम जो मज़ार हैं औलिया कराम के, उनको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मसाजिद जो हैं वो सजी हुई हैं और महफिल विर्द, महफिल नात, जिक्र की महफिल जो हैं वो जारी हैं। पूरी अकीदत और एहतराम के साथ लोग जो हैं आज ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मना रहे हैं, दरूद पाक के विर्द हो रहे हैं। और यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि एक ऐसी ईद जिसकी वजह से तमाम ईदें जो हैं उन्हें मैसर आई, सबसे बड़ी ईद है ये दिन, वो भरपूर तरीके से मना रहे हैं पूरे। यकीनन ये ईद है और सरकार की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। अभी पेशावर की बात हो जाए जहाँ मौजूद हैं सफीरुल्लाह, आपके पास क्या अपडेट्स है, किस तरह से शहर को सजाया गया है, कहाँ कहाँ महाफिल का इनेकाद किया गया? जी बिल्कुल, आज का दिन एक अजीम दिन, जिस दिन सरकार दो आलम की विलादत हुई, आज के दिन अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक एक ही सदा है, वो है दुरूद सलाम की और हम्दो सना की। पेशावर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह कराची, लाहौर, मुल्तान से बात की गई, जो मंजर कशी की गई, पेशावर में भी वही मंजर पेश किया जा रहा है। बच्चों की अकीदत का खुसूसी तौर पे किया जाएगा क्योंकि उन्होंने खुसूसी तौर पे इस दिन के लिए इंतजाम किए हुए हैं। कूफे का मंजर पेश किया जा रहा है पेशावर में। यहाँ पर अभी कुछ ही लम्हे बाद यहाँ से मरकजी जुलूस निकाला जाएगा जो कि मिलाद चौक से होता हुआ नगरी चौक, फिर उसके बाद रामपुरा से चौक यादगार और वहाँ से किस्सा खानी बाजार पहुंच के ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ पर मुकर्रीन हम्द सना पेश करेंगे और उसके खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी मुल्क की सालिमियत के लिए और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और सलामती के लिए। तो बहरहाल सरकारी और निजी इमारतों को भी इस दिन की मुनासबत से खुसूसी तौर पे सजाया गया है। एक अजीम मंजर पेश किया जा रहा है यहाँ पर और एक खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। शहर भी सजा है और तकरीबात भी अभी जारी है। सफीरुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। मुजाहिद शेख लाहौर से, कफायत अली कराची से और जानशेर खान मुल्तान से, आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर से आपको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। मुल्क भर की तरह कराची में भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और मजहबी जोशो खरोश से मनाया गया। मरकजी जुलूस मेमन मस्जिद से निकाला गया जिसके खिताम पर निश्तर पार्क में जलसा हुआ। देखते हैं तारिक अजीज की रिपोर्ट। कराची में मुख्तलिफ मुकामात से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमूई तौर पर 290 छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। मरकजी जुलूस जमात अहले सुन्नत कराची के अमीर शाह तुराबुल हक की क़यादत में न्यू मेमन मस्जिद खारादर से निकाला गया जो एम ए जिना रोड से होता हुआ निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान शुरका नात ख्वानी और दरूद सलाम का विर्द करते रहे। निश्तर पार्क में मरकजी जुलूस से हाजी हनीफ तैयब, मौलाना कोकब नूरानी उकाड़वी, मौलाना खलीलुर रहमान और दीगर ने खिताब किया। अल्लामा शाह तुराबुल हक का कहना था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन एक नौजवान मुल्क में ईसाई वजीर आजम के ख्वाब देख रहा है। एक अभी नए साहिबजादे तशरीफ ले आए हैं पाकिस्तान में, लंदन से। उनका कहना यह है कि मैं वजारत उज़्मा की सीट पर ईसाई वजीर आजम देखना चाहता हूँ। अरे भाई, उनसे पूछा जाए तुम्हारे नाना ने जो आइन बनाया 70 का, उसमें क्या है?
वजीर आजम सदर का मुसलमान होना जरूरी है? कम से कम सियासत में कदम रखने वाला आइन तो पढ़ ले। ये मुल्क नबी के निजाम के लिए बनाया था, ये इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लोगों को गाने सिखाए जाए। जलसे में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरी निफाज, औलिया कराम की तालीमात को आम करने के लिए इदारों के क़याम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून में किसी सूरत तब्दीली न करने, अमरीकी और भारतीय हमलों का मौसर जवाब देने, सानह निश्तर पार्क समेत तमाम खुदकुश हमलों की जामे तहकीक, दहशत गर्दों के सरपरस्तों की फौरी गिरफ्तारी और कलदम तंजीमों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की करारदादें भी मंजूर की गयी। उलमाए कराम का कहना था कि मुल्क में हर तरफ कत्ल गारत गरी, दहशत गर्दी और लाकानूनियत का दौर दौरा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए किसी शख्सियत या इनकलाब की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा के अमली निफाज की जरूरत है। कैमरामैन रुखसार बेग, मोहम्मद जुबैर और साथी रिपोर्टर किफायत अली शाह के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज, कराची। इसके अलावा दिन भर नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 मन हलवे की देग तैयार की गई, जिसे हजारों अकीदतमंदों में तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाम बाबर। मेरी सादत है आलम तेरा परवाना। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 20 कारीगरों ने 6 घंटे की मेहनत से 50 मन हलवे की देग तैयार की, जिसमें 150 किलो सूजी, 400 किलो चीनी, 150 किलो देसी घी, 10 किलो मक्खन, जबकि 450 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ मेवाजात का इस्तेमाल किया गया। यहाँ के इलाके के लोग आकर इसको बहुत पसंद करते हैं, हर साल हम इसको बनाते हैं। ये जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत के सिलसिले में तैयार होता है, फिर हम ये इसे तकसीम करते हैं। 50 मन हलवे की देग को सजादा नशीन सैयद नवीद फरीद बुखारी ने अकीदतमंदों में तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया। इसमें अहले इलाका का ताउन और तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत शामिल है। अकीदतमंदों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाइस हर साल हलवे की मिकदार में 5 मन का इजाफा किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। शोहर में भी नात खानी की रूह परवर महफिल ने समा बांध दिया। सना खान हजरात ने नातिया कलाम पेश किया तो सुनने वाले खुशी से झूम उठे। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। वालिए दो जहां खत्म रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में मॉडल टाउन में जश्न ईद मिलादुन नबी की शानदार महफिल सजाई गई, जिसमें आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर चेहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में ईमान की हरारत से मुनव्वर नजर आया। सना खान हजरात ने शान मुस्तफा बयान करके खूब रहमतें समेटी। महफिल मिलाद में खवातीन की शिरकत भी खूब थी और ईमान की ताजगी के लिए आने वाली खवातीन और बच्चों ने आका की शान भी सुनी और दुरूद सलाम से रूह कल्ब को भी मुनव्वर किया। नेमते रब्बुल उला है मुस्तफा खैरुल बशर, ए खुदा के बंदे रब की नेमतों का शुक्र कर। मिलाद के रूह परवर इज्तिमा में बस हर जुबान पर आका की शान और उनकी ज़ात अक़दस के लिए अकीदत का विर्द रहा। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने कौम पर जोर दिया है कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हकीकी मानों में अमल करें। इस्लामाबाद में 39वीं कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममनून हुसैन का कहना था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा म्याना रवी का दर्स दिया और इंतहा पसंदी की ममानियत की। विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का कहना था कि सरकारी मुलाजिम अपने फराइज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में फराइज अंजाम दें।
कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो गई है। कराची और पेशावर में सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी है। कोयटा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस खत्म होने के बाद शाम 5 बजे मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी गई। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कराची, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस रात 9 बजे तक बंद रहेगी। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है, जबकि डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल चलाने पर मुकम्मल पाबंदी रही। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए जुलूसों की फिजाई निगरानी भी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर आलम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए निस्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस एहलकार और 2000 से ज्यादा रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए थे। बच्चों और खवातीन को जुलूस में दाखिले की इजाजत नहीं थी। जुलूस के रास्तों की स्वीपिंग के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड की 6 टीमें भी तैनात की गयी थी, जबकि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज भी अलर्ट पोजीशन में जुलूस के रूट पर मौजूद थीं। जुलूस की फिजाई निगरानी भी की जाती रही और रेंजर्स के हेलीकॉप्टर फिजा में वक्फे वक्फे से गर्दिश करते रहे। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सिंध के तारीखी शहर भंगोर से क्या मिला। दोनों हुकूमतों ने ऐसे दाव पेच आजमाए कि सब चक्कर में आ गए। तरक्याती फंड्स की निचली सतह तक मुंतकिली रोकने के लिए क्या क्या चालें चली गईं, जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब और सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से बचने के लिए ऐसी चालें चली कि बड़े बड़े शातिर भी दंग रह गए और बल्दियाती इलेक्शन का किस्सा ही गोल हो गया। पहले दिन से दोनों हुकूमतों की बदनीयती खुलकर सामने आ गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग बल्दियाती इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती थी ताकि तरक्याती फंड्स निचली सतह तक मुंतकिल न हो सकें। अवाम को बेवकूफ बनाने और इलेक्शन कमीशन को चक्कर देने के लिए दिखावे के इक़दाम किए गए और अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। शुरू से ही इलेक्शन रुकवाने के लिए मुतनाज़े इक़दाम किए गए। पहले बल्दियाती कानून में मुतनाज़े शिक़ें शामिल की गयीं, फिर हल्का बंदियों में भी तनाज़ा पैदा किया गया। मकसद यही था कि अदालतें इन इक़दामात को कलअदम करार दे दें और इलेक्शन न हो सके। पंजाब में शेड्यूल जारी हुआ, कागजात नामजदगी भी जमा हुए, लेकिन कहीं हल्का बंदियां मुतनाज़े बन गयीं तो कहीं मुकम्मल ही न हो सकी। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया और हल्का बंदियां गैर कानूनी करार पाईं। यही पंजाब हुकूमत का मकसद था। इलेक्शन कमीशन ने भी मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन से माजरत जाहिर कर ली। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त से मशरूत की तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। मक़नातीसी स्याही का मामला भी बल्दियाती इलेक्शन की राह में रुकावट बना रहा। सिंध ने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर किया, लेकिन हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने जानबूझकर इस एक्ट में अपने मफाद की शिक़ें शामिल की। नतीजा ये निकला कि ये एक्ट मुतनाज़े बन गया और अपोजिशन जमातों की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इसे गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत कराने या गैर जानिबदार इदारे से नई हल्का बंदियों का हुक्म भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा में नए निजाम का ढंडोरा तो पीटा गया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने कोई आगाही मुहिम शुरू न की। कई हल्कों की जानिब से यूनियन काउंसिल्स की नई तकसीम के बायस बाअसर अफराद के बिला मुकाबला इंतखाब के खदशात भी सामने आए। इस्लामाबाद कहने को तो कौमी सियासत का मरकज है, लेकिन आम आदमी तक इख्तियार की मुंतकिली यहाँ भी ख्वाब बनी हुई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का कानूनी मुसव्वदा आज भी पार्लियामेंट की कायमा कमेटी की तवज्जो का मुंतज़िर है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने, बस यही कुछ हुआ बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ। पंजाब में उम्मीदवारों को 7 अरब से ज्यादा का पब्लिसिटी का टीका लग गया। इलेक्शन कमीशन ने भी फीसों की मद में पंजाब से उम्मीदवारों से 51 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे कुछ पता नहीं। लाहौर से लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में पहले 7 दिसंबर और फिर 30 जनवरी का ख्वाब दिखाया गया और यूं अक्टूबर में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई। पंजाब में 2,04,855 उम्मीदवार मैदान में आए, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने पब्लिसिटी की बाद में 15 मुरब्बा फीट की फ्लैक्स बनवाने की इजाजत दी। हर चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पैनल ने औसतन 4 माह जारी रहने वाली इंतखाबी मुहिम में 400 फ्लैक्स कमोबेश 40 रुपए फीट के हिसाब से तैयार करवाए। 20,046 चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पैनल्स ने 3 अरब रुपए फ्लैक्स पब्लिसिटी पर खर्च किए। जनरल काउंसिलर्स के 1,17,506 उम्मीदवारों ने पब्लिसिटी की मद में 2.25 अरब रुपए,
जबकि स्पेशल सीटों के दूसरे 67,303 उम्मीदवारों ने फ्लैक्स और बैनर्स पब्लिसिटी पर 1.5 अरब से जायद अखराजात किए। बैनर कुछ बने हुए हैं, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ फ्लैक्सें बनी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने भी नाकाबिले वापसी फीस की मद में पंजाब से बल्दियाती उम्मीदवारों से 51,56,71,000 से जायद के फंड्स हासिल कर लिए। और तो और सियासी जमातों ने भी टिकटों के नाम पर मांगी गई दरखास्तों के जरिए उम्मीदवारों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। लाहौर के जो दादोशुमार ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई 13 करोड़ रुपए कैंडिडेट से इकट्ठे किए पार्टी टिकट्स के नाम पर, और कुछ 17 करोड़ रुपए के करीब PMLN ने इकट्ठे किए हैं। अगस्त 2008 में मुद्दत मुकम्मल करने के बाद बल्दियाती इदारे कभी इलेक्शन कमीशन और कभी सूबाई हुकूमत के कोर्ट में लड़खड़ाते रहे। आइन कानून की बालादस्ती का दावा करने वाली सियासी जमातें सियासत के खेल में आइन के आर्टिकल 140(a) के तकाजे ही भूल गयीं, जिसके तहत हर सूबा कानून के मुताबिक मुकामी हुकूमतें कायम करने का पाबंद है। बल्दियाती इंतखाबात कराना और इख्तियारात को निचली सतह पर ले जाना ये आईनी जिम्मेदारी, और गुज़श्ता 5.5 साल से आपने देखा इस आइन के इस आर्टिकल्स की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है कि उसने आइन को तोड़ा या उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, तो क्या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू नहीं होता? इलेक्शन कमीशन हो या मरकजी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो। बल्दियाती इंतखाबी अमल में बेचारे उम्मीदवारों ने अखराजात तो बहुत बर्दाश्त किए, मगर उन्हें मंजिल फिर भी ना मिली और सियासत के सारे खेल में करोड़ों रुपए सरकारी मशीनरी पर भी उठ गए। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार कदम कदम पर मुआशी तौर पर लुटते रहे, कौम के अरबों रुपए डूब गए, मगर गफलत किसकी थी? जिम्मेदार कौन था? कोई भी मानने को तैयार नहीं। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज, लाहौर। बल्दियाती इंतखाबात के तो आसार नहीं, लेकिन मुल्क में कुछ नए आसार नजर आ गए हैं। सिंध के तारीखी शहर भंबोर में पाकिस्तान और इटली के माहिरीन की मुश्तरका खुदाई के दौरान नए तारीखी आसार मिल गए। भंबोर में इब्तदाई खुदाई के दौरान किले की दीवारें, बर्तन, सिक्के और दीगर अशिया दरियाफ्त हुई हैं। इस दौरान एक इंसानी ढांचा भी मिला है। महकमा आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि उन्हें मजीद नवादरात मिलने की कवी उम्मीद है, जिससे तारीखी वर्षे की तारीख मजीद नुमाया होगी। और बुलेटिन में आगे शामिल है, भारत में खवातीन पर सरेआम पुलिस तशद्दुद। इस समय तो और भी बहुत सी अहम खबरें होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है क्यू मोबाइल, स्मार्टफोन फॉर स्मार्टर जनरेशन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हादी आलम और वजह तख्लीक कायनात की दुनिया में आमद पर अर्ज़ो समा में जश्न, आशिकाने रसूल के लबों पर दरूद व सलाम। पुलिस में तबादलों के मामले पर सिंध हुकूमत और रेंजर्स आमने सामने। सेटअप में तब्दीली से कराची में जारी टारगेटेड ऑपरेशन को नुकसान पहुंच सकता है, डीजी रेंजर्स ने खबरदार कर दिया। कहते हैं उम्मीद है वजीर आजम की हिदायत पर अमल होगा। और सवात, मानसहरा, मालाकंड और गिरदोनवाह में जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं सिंध हुकूमत के एक नए मसले के बारे में। कराची में आला पुलिस अफसरों के तबादलों पर रेंजर्स हुकाम ने शदीद बरहमी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए टारगेटेड ऑपरेशन रोकने का इंदिया दे दिया है। डीजी रेंजर्स का कहना है कि मौजूदा सेटअप मजीद 1 साल तक बरकरार रखा जाए, वरना कराची ऑपरेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। कराची में एसपीओ और एसएसपी रैंक के अफसरान के तबादलों की इत्तलात पर रेंजर्स हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें तबादलों की सूरत में कराची में जारी ऑपरेशन पर पड़ने वाले असरात और मुमकिना नताइज पर गौर किया गया। रेंजर्स हुक्काम ने तबादलों की इत्तलात पर शदीद बरहमी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इन्हें गैर मंतकी करार दिया। इजलास में कहा गया कि अगर मुशावरत के बगैर तबादले हुए तो कराची ऑपरेशन रोकने पर गौर किया जा सकता है। डीजी रेंजर्स का कहना था कि पुलिस के मौजूदा सेटअप में तब्दीली से कराची ऑपरेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।
पुलिस के मौजूदा सेटअप को मजीद 1 साल तक बरकरार रखा जाए। डीजी रेंजर्स ने उम्मीद जाहिर की है कि कराची ऑपरेशन और पुलिस अफसरान के तबादलों के हवाले से वजीर आजम की हिदायत को मद्देनजर रखा जाएगा। रेंजर्स हुकाम की जानिब से तशवीश के इजहार पर सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने तबादलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि सिंध पुलिस के अफसरान के तबादलों का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। कराची में एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। हमले में सफेद रंग की गाड़ी इस्तेमाल की गई। पुलिस ने गाड़ी के 17 पार्ट्स भी बरामद कर लिए हैं। लियारी एक्सप्रेस वे पर होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात जारी हैं, जिनके मुताबिक एसएसपी सीआईडी को निशाना बनाने के लिए सफेद रंग की गाड़ी इस्तेमाल की गई। पुलिस ने तबाहशुदा गाड़ी के 17 पार्ट्स भी बरामद कर लिए हैं। जराये के मुताबिक हुक्काम ने चौधरी असलम के स्क्वाड में शामिल ड्राइवर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके मुताबिक जाए वकुआ पर गाड़ी पहले से खड़ी थी, जो स्क्वाड के करीब आते ही धमाके से फट गई। दूसरी जानिब तहकीकाती टीमों ने तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी कर दिया है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम एजाज उर्फ जज 7 अफराद का कातिल निकला। फैसलाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात के बाद वकला के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। कोई भी मुलजिम वकील नहीं, जबकि एक गिरफ्तार मुलजिम एजाज उर्फ जज 7 अफराद का कातिल निकला। एजाज ने इलेक्शन 2008 के दौरान शेखुपुरा में यह कत्ल किए थे। और अब कुछ बात हो जाए सरहद पार की। फिल्मी हीरो असल जिंदगी में जहां जीरो निकले, बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान इंतहा पसंद हिंदुओं से डर गए। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ पींगे पढ़ाते रहे। हजारों मुसलमानों के कातिल को गुडमैन करार दे दिया। फिल्मों में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाने वाले दबंग खान शायद इंतहा पसंदों से डर गए, इसीलिए तो मुंबई से अहमदाबाद गए और हजारों मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी के साथ पेच लड़ाते हैं। इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नरेंद्र मोदी के साथ सलमान खान की मौजूदगी ने एक बार तो सबको हैरान कर दिया। सोने पे सुहागा ये कि सलमान मीडिया के सामने आए तो दुनिया भर में बदनाम बैडमैन नरेंद्र मोदी को गुड मैन करार दिया। द बेस्ट मैन फॉर द कंट्री, फॉर ऑल ऑफ अस। गुड मैन है मेरे सामने खड़े यहाँ पर, गुड मैन है मेरे सामने खड़े यहाँ पर। लगे हाथों सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म जय हो की प्रमोशन भी कर डाली। मैं बम्बई का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ लव सपोर्ट के लिए, प्रमोट करने के लिए जय हो। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में मुस्लिम कुश फसादात का घाव अभी भरा नहीं। ऐसे में बॉलीवुड के मुसलमान सुपरस्टार सलमान खान की जानिब से मोदी की तारीफें भारतीय मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। गुड मैन के बारे में तो आपने जाना, अब आपको गुड पुलिस की भी बारे में बताएं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुजाहरा करने वाली खवातीन पर लाठियां बरसा दी और थप्पड़ मार मार कर एहतजाज करने पर मजबूर किया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर फिरोजाबाद में पुलिस गर्दी की नई मिसाल सामने आई है। ताकत के नशे में चूर एहलकारों ने हादसे के बाद मुजाहिरा करने वाली खवातीन को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अहलकारों ने खवातीन को थप्पड़ मारे और लातों और घूंसों का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने इसी पर इक्तफा न किया बल्कि इन बेचारियों पर लाठियां भी बरसाईं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून के महाफिजों का ये हाल है तो दूसरी जानिब कानून बनाने वाले आवाम से बेखबर अपने हाल में मस्त हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला कुछ रोज कबल एक तकरीब में बॉलीवुड के ठुमकों से दिल बहलाते रहे।
भारतीय मीडिया का कहना है कि अय्याशी पर लाखों रुपए खर्च करने वाले सियासतदानों को पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली खवातीन की परवाह है और न ही उन्हें इस बात की कोई फिक्र है कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कुश फसादात के दौरान बेघर होने वाले इस सर्द मौसम में भी कैंपों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नेशनल बैंक हुकाम में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला हुकाम ने रकम न देने पर बैंक के ग्रुप चीफ और चीफ HR समेत मुतादिद अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। रवा माह की 9 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यूथ लोन प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए बहावलपुर का दौरा किया। इस दौरे के हवाले से अब नया तनाज़ा सामने आया है। जिला इंतजामिया ने तकरीब के अखराजात की मद में नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए तलब कर लिए। बैंक इंतजामिया के इनकार पर नई कहानी घड़ी गई, जिसके मुताबिक बैंक अफसरान ने DCO कॉलोनी के हेड क्लर्क और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अफसर की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात पर रोके जाने पर हंगामा किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। इसी कहानी को बुनियाद बनाकर बैंक अफसरों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से दीगर इदारों से VVIP दौरों के अखराजात की तलबी नई बात नहीं। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद कुरैशी के मुताबिक ये जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की है, लेकिन किसी बैंक से पैसे मांगना और इनकार पर मुकदमा अलबत्ता गैर मामूली है। जिस जमाने में हमने सर्विस की है, ये मकामी इंतजाम जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसी की जिम्मेदारी समझी जाती थी। एक ये वो VVIP मूवमेंट्स की जो उनके विजिटेशन जो होते थे, उनके दौरे होते थे, उसके इंतजामात भी करें और उसके अखराजात भी बर्दाश्त करें। माजी में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती और मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मुकदमा अगर किसी बैंक के खिलाफ दर्ज करवाया है तो वो बड़ी ही एक गैर मामूली हरकत है। जावेद कुरैशी के मुताबिक जिला हुकूमत के इदारे बजट में VVIP दौरों के लिए बाकायदा फंड्स रखते हैं। मुजफ्फरगढ़ में पेश आया एक अफसोसनाक वाकया। जमीन के तनाजे पर 5 अफराद ने किसान पर तेजाब फेंक दिया। उसका पूरा जिस्म झुलस गया और आंखें जाया हो गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर का सलीम अपने खेतों में काम कर रहा था कि जमीन के तनाजे पर 5 मुल्जिमों गुलाम रसूल, लुकमान, रमजान, फरमान और शौकत ने पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उस पर तेजाब फेंक दिया। सलीम का पूरा जिस्म बुरी तरह झुलस गया और आंखें भी जाया हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि मुल्जिम उनके घर के करीब रहते हैं। उनके साथ काफी अरसे से जमीन का तनाजा चल रहा था। बंदे आ गए 5-7 और मैं करते थे बरोबर आते ढा देता हूँ। तेजाब सट्टे ने सरिये चेज़ रपीटारा फायर कर दिए ने। थाना सदर अलीपुर पुलिस ने 2 मुल्जिमों रमजान और अशरफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 मुल्जिमों की तलाश जारी है। और अब खेलों की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ना सब्सक्रिप्शन ना कोई चार्जेस, बस अपने मोबाइल से स्टार्ट फेस बुकिंग, इट्स फ्री। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्टूबर में होने वाली सीरीज में एक टेस्ट कम करके 3 वनडे बढ़ाने की तजवीज दे दी। PCB ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को तजवीज पेश की है कि क्रिकेट सीरीज में 3 के बजाय 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएं और 5 की बजाय 8 एक रोजा मैचेस के साथ एक T20 मैच भी शामिल किया जाए। अक्टूबर में होने वाली सीरीज में 3 टेस्ट और 5 एक रोजा मैचेस हैं। और पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2013 का बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी करार दे दिया गया। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में होने वाली पुरवकार तकरीब में वर्ल्ड फुटबॉल में बेहतरीन प्लेयर्स को अवार्ड दिए गए। मैड्रिड और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साल में शानदार और यादगार परफॉर्मेंसेस के नतीजे में फीफा बैलन डियोर का अवार्ड पेश किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अवार्ड्स की दौड़ में रिवायती हरीफ और अर्जेंटाइनी स्टार लियोनेल मेसी को शिकस्त दी। इस मौके पर अश्कबार आंखों के साथ रोनाल्डो का कहना था कि इस लम्हे को बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं हैं। जर्मन गोलकीपर नैडिन एंकर को खवातीन फुटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब चलते हैं मौसम की सर्द दुनिया में। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जहां ख्वाब वहां HBL।
मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। के ज्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मालाकन डिवीजन में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। दोश में सबसे ज्यादा 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कालाम में 1 इंच तक बर्फबारी पड़ी। सबसे कम दर्जा हरारत पारा चनार में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गोपस और अस्तोर में -8, हुंजा और स्कर्दू में -7, कोयटा में -5, रावलाकोट और मरी में -3 और गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और अब कारोबार की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय UBL only, हर पल आपके साथ। रवा माली साल की दूसरी सहमाही में भी हुकूमत कानून की पाबंदी न कर सकी। मरकजी बैंक से 529 अरब रुपए कर्ज ले लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने मरकजी बैंक से 529 अरब रुपए कर्ज लिया। एक हफ्ते में स्टेट बैंक को 61 अरब रुपए वापस लौटाए गए। माली जिम्मेदारी एक्ट और कर्जों की हद के कानून के मुताबिक सहमाही के अख्ताम पर मरकजी बैंक से हुकूमती कर्ज 0 होने चाहिए थे। और अब बैनुल-अक़वामी खबरें। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय Medicant Dental Cream. Dentist first recommendation. 10 problems, 1 solution. साबिक बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थैचर के सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। डेविड कैमरॉन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। बरतानिया की नेशनल आर्काइव की जानिब से खुफिया दस्तावेजात में बताया गया है कि बरतानवी एयरफोर्स ने साबिक वजीर आजम मार्गरेट थैचर के हुक्म पर 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी की मदद की थी। लेबर पार्टी के 2 बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट टॉम वॉटसन और लॉर्ड इंद्रजीत सिंह की जानिब से वाकई की तहकीकात के मुतालबे पर डेविड कैमरॉन ने इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें दुनिया 100 सेकंड्स में। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया गनौर चिकन कॉर्न सूप। गनौर जायका जिंदगी का। एंड जस्ट SMS GLOW 24 to 7777। इराक के मगरिबी शहर फलूजा में फौज और अलकायदा की लड़ाई के बाद मामूलात जिंदगी वापस आ रहे हैं। 1 जनवरी को इराकी फौज ने शहर को अलकायदा के कब्जे से छुड़वाने के लिए कार्रवाई की थी, जिसके दौरान 13,000 खानदान शहर छोड़ गए थे। इंडोनेशिया के सूबा समाट्रा के आतिशफशां पहाड़ सिनाबंग से राख और धुआं निकलने में शिद्दत आ गई है। धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि 25,000 शहरी अपने घरों को छोड़कर इमदादी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। करीबी इलाकों में राख को हटाने का काम भी जारी है। लीजिए जनाब, टच स्क्रीन मोबाइल और कंप्यूटर्स में कीबोर्ड की वापसी शुरू हो गई है। अमेरिकी कंपनी ने टेबलेट के पीछे कीबोर्ड नस्ब करके टेबलेट और कीबोर्ड का नया अंदाज मार्केट में पेश कर दिया है, जिसे शायकीन ने बेहद पसंद किया है। कीबोर्ड से लैस टैबलेट कंप्यूटर्स की फरोख्त इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी। पहली जंग अजीम के आगाज के 100 बरस होने पर फौजियों की लॉग बुक्स, डायरियों और जंगी हिकमत अमली के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। बरतानिया के नेशनल आर्काइव्स में 5,500 डिब्बों में बंद 15 लाख सफ़हात को ऑनलाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है, जो 5 बरस में मुकम्मल होगा। पहली जंग अजीम 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जूसी कॉर्न चिकन और चाइनीज सॉस को लेकर बनाया गनौर चिकन कॉर्न सूप। गनौर जायका जिंदगी का। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म राइड अलोंग 17 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म की कहानी बातूनी सिक्योरिटी गार्ड के गिर्द घूमती है, जो एक पुलिस अफसर की बहन से शादी करने का ख्वाहां है। खुद को अहल साबित करने के लिए वो पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।